आज चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है। दुनिया भर के किसी भी प्रोडक्ट पे आपको एक ही मैक्सिमम लेबल मिलेगा, मेड इन चाइना। तो क्या किया ऐसा चाइना ने जिसका उसका प्रोडक्ट दुनिया भर में फैला दिया है? सो हियर आर द टॉप 5 रीजन दैट मेड चाइना द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हाउस। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि चाइनीज प्रोडक्ट चीप इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ ए चीप चाइनीज लेबर, बट देयर इज मच मोर टू इट देन दिस. China is known as the world's factory because of its strong business ecosystem, low regulatory compliances, low taxes and duties, and competitive currency practice. Reason number 1, lower wage. China is home to approximately 1.39 billion people, which makes it the most populous country in the world. The law of supply and demand tells us that since the supply of workers is greater than the demand for low-wage workers, wages stay low. Moreover, the majority of the Chinese were rural and middle class or poor until the late 20th century when internal migration turned the country's rural-urban distribution upside down. And these migrants to industrial cities are willing to work many shifts at low wages. वेस्टर्न कंट्रीज की तरह चाइना चाइल्ड लेबर और मिनिमम वेजेस का सख्ती से पालन नहीं करता, मगर अब सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। चाइना के काफ़ी प्रोविंसेस में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के चलते मिनिमम वेजेस को भी बढ़ाया जा रहा है। अपने इसी लेबर पूल के दम पे चाइना किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सीजन में किसी भी क्वांटिटी में बल्क में प्रोड्यूस कर सकता है। रीजन नंबर 2, बिजनेस इकोसिस्टम। किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को चलाने के लिए चाहिए नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर्स, इन सभी का कंपटीशन और कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और पिछले 30 सालों में चाइना ने अपने बिजनेस इकोसिस्टम को इसी तरह से काफ़ी डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल, शेंजेन, अ सिटी बॉर्डरिंग हांगकांग इन द साउथ ईस्ट, हैज इवॉल्व्ड एज अ हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. It has cultivated an ecosystem to support the manufacturing supply chain, including component manufacturers, low-cost workers, a technical force, assembly suppliers, and customers. प्रोडक्शन कॉस्ट कम रखना और मार्जिन्स हाई रखना, चाइना के इसी दो काबिलियत का अमेरिकी कंपनी एप्पल काफ़ी फायदा उठाती है। रीजन नंबर 3, lower compliance. Manufacturers in the West are expected to comply with certain basic guidelines with regards to child labor, involuntary labor, health and safety norms, wage laws, and protection of the environment. Chinese factories are known for not following most of these laws and guidelines. Chinese factories के इतिहास में चाइल्ड लेबर, लंबे समय तक काम करना एंड नो वर्कर कंपनसेशन की पॉलिसीज रही है। कुछ फैक्ट्रियों में ऐसा भी है कि उन्हें सिर्फ साल में एक बार सैलरी दी जाती है ताकि लेबर साल खत्म होने से पहले अपना काम छोड़ के ना जा सके। अपने लेबर लॉ के लिए ग्लोबल क्रिटिसिज्म फेस कर रहा चाइना गवर्नमेंट अभी ये भी कह रहा है कि उसने अपने लेबर लॉ में काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं ताकि लेबर को उनका अपना अधिकार और कंपनसेशन मिल सके, मगर रूल का कंप्लायंस फॉलो करने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी काफ़ी धीमी पाई गई है। रीज़न नंबर 4, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए चाइना ने 1985 में एक्सपोर्ट पे से टैक्स को हटा दिया गया था। That means the Chinese exporters would enjoy either rebate or exemption. Additionally, consumer products from China were exempted from any import taxes. These lower rates helped them to keep the cost of production low, enabling the country to attract investors and companies looking to produce low-cost goods. Reason number 5, currency. China has been accused of artificially depressing the value of the yuan to provide an edge to its exports against similar goods produced by US competitors. China keeps a check on the appreciation of yuan by buying dollars and selling yuan. The yuan was estimated to be undervalued by 30% against the dollar in late 2005. In 2017, the yuan appreciated 8% against the dollar, a move that experts say came after President Trump threatened to label China a currency manipulator. However, this trend reversed and the yuan weakened against the dollar beginning in June 2018 when US imposed tariffs on Chinese goods. On August 8, 2019, China's central bank lowered the yuan to 7.0205 per dollar, the weakest level since April 2008. The weaker yuan makes China's exports more attractive and it seems as China's reply to its trade war with the US. तो ये था हमारा वीडियो उन 5 पॉइंट्स पे जिसने चाइना को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाया है। फिलहाल कोरोना वायरस के चलते बॉयकॉट चाइनीज़ का नारा पूरे दुनिया भर से उठ रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि हम हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप कर सके और फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला सके, जिससे कि जॉब क्रिएशन हो और शायद की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। मगर ये सारे निर्भर करता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे और उसके इम्प्लीकेशंस पे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मैं महेश पांचाल, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।